ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਆਚਾर्य ਮਨੀਸ਼ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਔਰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ-ਆਈ-ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀ 10 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 40 ਡਿਗਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਨੀ 10 ਇੰਚ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਇੰਚ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ? 40 ਡਿਗਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद। सत ਡਾਕਟਰ श्री ਸਾਹਿਬ, अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ-ਆਈ-ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ, 100 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੰਦ ਪੈਸੇ, ਚੰਦ ਰੁਪਈਏ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀਓ 10 ਇੰਚ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ कितना शुरू होती है बॉडी के अंदर? जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कॉम्पिटिशन इज़ ह्यूमन, हुँ। कोऑपरेशन इज़ डिवाइन। जी, जी। तो कॉम्पिटिशन में मैं अच्छा कि तुम अच्छे, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, हुँ, हुँ, हुँ। ये कॉम ये कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल। कोऑपरेशन में क्या है, सबकी साड़ी सफ़ेद हो, हुँ, हुँ, हुँ। सबका भला हो। हुँ, हुँ। जब हम डॉक्टर बनते हैं, तो एमबीबीएस पास करने के बाद पहला हुँ, यही चीज़ ख़्याल में सबके मन में, मैं बहुत श्योर हूँ, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके मन में ये ख़्याल नहीं आता होगा कि मैं अपने हाथों से जो भी करूँ, लोगों का भला करूँ, हुँ। उनको बाहर निकालूँ, अ, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इस प्रोसेस में मैं अपना फैमिली भी चला पाऊँ, मैं कुछ पैसे अर्जित कर लूँ,
जिससे अपना जीवन यापन चलता रहे, हम्म, तो उनका सबका भला हो, मेरा भी कुछ भला हो जाए, ये सभी सोचते हैं। हम्म, सभी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो ऐसा नहीं सोचता होगा कि नहीं पेशेंट ठीक ना हो। हम्म, मैं उस स्थिति से बात करना शुरू कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर। हम्म, ब्लड प्रेशर क्या चीज है और किडनी क्या काम करती है। किडनी एक फिल्टर है। आप हम्म, देखेंगे कोई भी चीज अगर हम फिल्टर करते हैं तो हम्म, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तब पानी डालते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको फिल्टर करके फिल्ट्रेट को बाहर निकाल देता है और रेसिड्यू को अंदर जाने देता है। हम्म, किडनी भी एक फिल्टर है। हम्म, अब फिल्टर, कभी आप सो जाते हैं, कभी आप जाग जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, ग्रेविटी को एनल कर देते हैं, तो हम्म, फोर्स कहां से आएगा? ये ब्लड प्रेशर से आता है। ब्लड को प्रेशर चाहिए फिल्टर करने के लिए, तो वो किडनी से फिल्टर कर पाता है। अगर फिल्टर नहीं कर पाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कि जैसे भी हो फिल्टर कर पाए, इसलिए ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाता है। ये दूसरे तरीके भी चलता है कि किडनी जब फेल करती है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड को ज्यादा प्रेशर चाहिए वो चीज फिल्टर करने के लिए जो नॉर्मल प्रेशर से हो सकता था, लेकिन अब वो चूंकि डैमेज हो चुका है इसलिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला, 120/80 जैसे है। तो 120 हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं इसको, इस 120 को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लीजिए 140 हो गया और डायस्टोलिक 80 रह गया, तो दोनों का फर्क कितना हो गया? 60। 60 बिल्कुल। पहले 120 80 था तो फर्क कितना था? 40। 40 था। अब 140 और 80 हो गया तो फर्क कितना हो गया? 60। इसको पल्स प्रेशर कहते हैं, पल्स प्रेशर। जिस प्रेशर से पल्स चलता है, पल्स को भी प्रेशर चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड है बॉडी में मूव करने के लिए ब्लड को। तो पल्स प्रेशर से एक तो ब्लड भी मूव करता है, ब्लड फिल्टर भी होता है, और लिम्फेटिक्स भी साथ साथ चलती हैं, बिकॉज लिम्फेटिक्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो ब्लड में से जो चीज बाहर आ गया वापस ब्लड स्ट्रीम में कैसे आएगा, तो ऊपर वाले ने एक और चैनल बनाया है लिम्फेटिक्स का। लिम्फेटिक्स वापस लाके ब्लड में दे देती हैं, अगर गलती से कोई चीज बाहर आ गई, तो जैसे प्रोटीन बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो वापस ब्लड में कैसे आएगा? तो लिम्फेटिक चैनल्स हैं जो बने हुए हैं बॉडी में। यानी और लिम्फेटिक यानी कि रस प्रणाली। हाँ, तो लिम्फेटिक चैनल्स के पास अपना कोई ये मसल नहीं होता है, वो या तो आपके बॉडी मूवमेंट से चलते हैं, जब आप मूव करेंगे तो मसल्स उसको स्क्वीज करते हैं तो उसमें से फ्लूइड जाता है, या पल्स के प्रेशर से वो चलते हैं लिम्फेटिक्स। तो पल्स प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा और लिम्फेटिक आउटफ्लो भी बढ़ेगा। तो जब आप दो तरीके हैं इसमें, जो नेचुरल डायलिसिस की बात हो रही है, इसमें दो तरीके हैं। एक, हेड डाउन टिल्ट, सर नीचे पैर ऊपर। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, समझने वाली बात इसमें ये है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर, ये तो आप समझ गए, दर्शक भी समझ गए होंगे कि 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है। ये दोनों का डिफरेंस 120 माइनस 80 अगर है तो 40 है, तो वो पल्स प्रेशर है। 1 मिनट में रोकूंगा। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला, ऊपर जिसको वाला ब्लड ऊपर वाला बोलते हैं, है ना। दर्शकों को थोड़ा सा रिफाइंड करके इसको समझा दें। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना, 120। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब नीचे वाला ब्लड प्रेशर यानी 80, है ना। ये सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक जो है, इसकी जो पंजाबी में अगर, हिंदी में अगर बात करें तो लेमैन की लैंग्वेज में बात करो, ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं आप। जी 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 जी, एब्सोल्युटली। जी तो जब पेशेंट को हेड डाउन टिल्ट करते हैं, जी जी सर नीचे पैर ऊपर, जी जी अब पूरा नहीं, एक एंगल में,
हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें समझने वाली बात है कि ब्लड ज्यादातर ऊपर ऊपर की तरफ आ गया क्योंकि सर नीचे है और पैर ऊपर है। हुँ, हुँ। तो जो हार्ट के जो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हुँ, उसमें हुँ। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर मतलब जो प्रेशर सेंस करते हैं, हुँ, जो हुँ। सेंस करते हैं कि प्रेशर बढ़ गया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब हेड डाउन टिल्ट करते हैं तो ये बैरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं हुँ, और हुँ। ये हार्ट को सिग्नल देते हैं कि ये प्रेशर बढ़ गया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो कार्डियक आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है। अगर हुँ। कार्डियक आउटपुट कम होता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्योंकि क्योंकि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, हुँ, हुँ। सिस्टोलिक किस चीज पे डिपेंड करता है? हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा है उस पे डिपेंड करता है। उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, यानी जितना कि हार्ट से ब्लड निकल रहा है। हाँ, उसको कार्डियक मतलब दिल से बाहर निकलने वाला जो खून है, उसको हम्म, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। सिस्टोलिक यानी जी, कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि मेरे पैर के मेरे फुट के अंगूठे तक जी, जी। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड जा रहा है जी, जी। वो कैसे जा रहा है? तो वो जो आर्टरीज है जी, उनका जी। सिकुड़न जी। अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो ज्यादा ब्लड जाएगा, कम हो गया तो कम ब्लड जाएगा। जी, जी, जी। तो उसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो हुँ, डायस्टोलिक कम हो जाएगा, हुँ, हुँ, हुँ। जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नीचे वाला ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो हुँ, हुँ। जैसे ही हमने हेड डाउन टिल्ट किया हुँ, हुँ। तो पैर में से ब्लड ग्रेविटी के चलते ऊपर आ गया, हुँ, हुँ, हुँ। सर के तरफ आ गया हुँ, हुँ, हुँ। और ये बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए जो कि सिस्टोलिक को कम करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और पैरों में से भी ब्लड निकल गया तो वो भी रेजिस्टेंस कम हो गया, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो गया, तो डायस्टोलिक भी कम हो गया, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है हुँ, हुँ, हुँ। अगर ज्यादा है तो। हुँ, हुँ। इसीलिए हेड डाउन टिल्ट से ठीक होता है। हुँ, हुँ, हुँ। नाउ नाउ एक और चीज होता है कि सिस्टोलिक कम नीचे जाता है, डायस्टोलिक ज्यादा नीचे जाता है, तो अल्टीमेटली पल्स प्रेशर बढ़ गया। हुँ, हुँ, हुँ। पल्स प्रेशर जो पहले 40 था, 120 80 का जो डिफरेंस है वो 40 है। हुँ, हुँ, हुँ। तो 120 110 आ गया और ये जो 80 है 60 आ गया। तो हुँ, हुँ। 110/60 तो ये 50 हो गया ना। हुँ, तो हुँ, हुँ। पल्स प्रेशर बढ़ गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक तो ब्लड प्रेशर कम हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा पल्स प्रेशर बढ़ गया जो किडनी में से ज्यादा वो टॉक्सिन्स को निकाल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए ये नेचुरल डायलिसिस हो गया इससे, अगर हुँ, हेड डाउन टिल्ट पे आ गए तो। हुँ, हुँ। दूसरी श्रेणी ले लें। अभी अभी यहाँ दूसरी, रोको, अभी रोको, क्योंकि जानकारी जो है इससे अगर आप बढ़ाई तो बीच में रह जाएगा। एक बात बताइए कि जो ये ब्लड प्रेशर है, वो कम होता ही क्यों है? अंदर क्या क्या कमी रह जाती, क्या हो जाता है जिससे कि ब्लड नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे नहीं जा रहा? क्या ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें कुछ सिकुड़न आ जाती है? क्या ब्लड वेसल के अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, उसकी वजह से ये होता है? ये भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? आप वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ। ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ता है, कभी भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कारण को एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। हुँ, हुँ। एसेंशियल मतलब इडियोपैथिक, यूजुअली इसका कॉज पता नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ब्लड जो है वेसल्स में ही चलता है। जो हुँ, हुँ। जो वेसल्स ब्लड लेके जाते हैं हुँ, उसी हुँ। में चलता है ब्लड। ब्लड तो बाहर नहीं रहता है, वेसल में चलता है। हुँ, हुँ। अगर वेसल का थिकनेस बढ़ गया, हुँ, हुँ। अगर थिकनेस वेसल का बढ़ गया तो ल्यूमेन कम हो गया। आप हुँ, देखिए, हुँ, ये हुँ, हुँ। ये ब्लड ये ब्लड वेसल है मान लीजिए। हुँ, अगर हुँ। थिकनेस बढ़ गया, ये और थिक हो गया, तो हुँ, उसका हुँ। ल्यूमेन और कम हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पाइप गुज़रने का रास्ता जो है वो कम हो जाएगा।
जी, तो पाइप से जैसे पानी दे रहे हैं आप, हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर पाइप को आपने थोड़ा पतला कर लिया, मतलब उसका ल्यूमेन कम हो गया, तो पानी का फ़ोर्स बढ़ जाता है। हुँ, हुँ, उसी तरह ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वॉल थिक हो गया। हुँ, हुँ, जो वॉल है आर्टरीज़ की, थिक हो गई। क्या चीज़ से थिक होती है? कोलेस्ट्रॉल से। हुँ। क्या कोलेस्ट्रॉल चीज़ से से भी थिक होता हो? है, कोलेस्ट्रॉल से भी होती है, और अगर वेसल्स के अंदर सोज आ गई है कुछ तब भी हो जाती है। बिल्कुल, 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 हुँ, बिल्कुल। तो ये थिक हो गई, हुँ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हुँ, इसीलिए ब्लड प्रेशर का बढ़ना पूरी बॉडी के लिए, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा? क्योंकि सभी ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए, हुँ, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड चाहिए, वो हुँ, मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसकी ल्यूमेन कम हो गई है, हुँ, हुँ, इसलिए ज़्यादा प्रेशर से चाहिए, हुँ, हुँ, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हुँ, हुँ, पूरी बॉडी के लिए तो ब्लड प्रेशर उतना घातक नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन ब्रेन के लिए घातक है। आप अगर देखेंगे, ब्रेन छोड़ के बाकी सब जगह ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट में मसल्स हैं। हुँ, हुँ, अगर ब्लड ब्लड पे प्रेशर बढ़ भी गया, तो मसल उसको बफर कर देते हैं। हुँ, 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 ये मसल के पीछे बोन है, हुँ, 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 वो भी वो भी बफर कर देता है, हुँ, लेकिन ब्रेन के अंदर कोई बोन नहीं है। हुँ, 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 इसलिए यहाँ के ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं, हैमरेज, उसको ब्रेन हैमरेज कहते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि जो प्रेशर से ब्लड जो आ रहा है, उसको वापस प्रेशर देने के लिए कोई चीज है नहीं, हुँ, कोई हुँ, सॉलिड चीज नहीं है, हुँ, हुँ, इसीलिए वो हट जाते हैं। हुँ, हुँ, यहाँ तो कई चीजें हैं, इसलिए वो रुकी रहती हैं, हुँ, लेकिन हुँ, ब्रेन में नहीं है। हुँ, इसीलिए ब्लड प्रेशर ब्रेन के लिए घातक होता है। हुँ, हुँ, और ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन इसलिए यूज की जाती हैं कि ब्रेन में ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, ताकि वो फट ना जाए, ताकि कोई इमरजेंसी ना आ जाए। हुँ, 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 लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हुँ, 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 हमने दिया था ब्रेन के ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो गया। हुँ, तो जितने प्रेशर से किडनी को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हुँ, हुँ, जितने प्रेशर से हार्ट को चाहिए, नहीं मिल रहा है। हुँ, हुँ, जितने प्रेशर से लंग्स को चाहिए, नहीं मिल रहा है। जितने हुँ, प्रेशर से लीवर को चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये धीरे-धीरे ऑर्गन्स फेल करने लगते हैं। हुँ, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दर्शकों की जानकारी इसके लिए बिल्कुल साफ होता है कि उतना घातक जो है ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं होता, जितना घातक ब्लड प्रेशर कम होना होता है। क्योंकि कम होता हुआ मतलब ऑर्गन तक ब्लड पहुँच ही नहीं रहा सही ढंग से, और अगर जिस जगह पर ब्लड नहीं पहुँच रहा, जिस जगह पर ब्लड की कमी आ गई, वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं जा रही, न्यूट्रिशन वाटर भी नहीं जा रहा, न्यूट्रिशंस भी नहीं जा रहे, खाना भी नहीं जा रहा, और ब्लड तो जा नहीं रहा। तो इसी वजह से वो ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाते हैं। धीरे-धीरे फेल करते हैं। जी। इसलिए बेस्ट क्या है? ब्लड प्रेशर अगर इमीडिएटली बढ़ गया, तो हो सकता है दवाइयों से आप कम कर लें उसको, ताकि हुँ, ब्रेन में हैमरेज ना हो, हुँ, और हुँ, धीरे-धीरे अपनी लाइफ़स्टाइल ऐसी बना लें हुँ, हुँ, कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। हुँ, हुँ, ताकि सभी ऑर्गन्स को जितना प्रेशर से ब्लड चाहिए, मिलता रहे उसको। हुँ, हुँ, होना यही चाहिए। हुँ, हुँ, लेकिन पेशेंट्स क्या सोचते हैं, मैं तो दवा खा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हुँ, 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 और ये सोच के चलते रहते हैं, धीरे-धीरे 20 साल में देखा कि किडनी फेल कर गई। क्योंकि हुँ, किडनी को जितना प्रेशर से ब्लड चाहिए, नहीं मिल रहा है, हुँ, हुँ, इसलिए वो फेल कर गई। अगर हुँ, हमने उसी समय लाइफ़स्टाइल बदल लिया होता, तो हुँ, किडनी फेल करने की नौबत ही नहीं आती, हुँ, और ना ही हार्ट फेल करता, कुछ भी फेल नहीं करता। हुँ, हुँ, ना ही लीवर फेल करता, कुछ भी फेल नहीं करता। हुँ, तो ये एक समझने वाली बात है कि कोई भी चीज़ एक्यूट इमरजेंसी कुछ और चीज़ होती है, हुँ, हुँ, उसको मेंटेन कैसे करना है, वो एक और चीज़ है। हुँ, मेंटेन हमेशा बॉडी को खुद ही बॉडी के ऊपर छोड़ देना चाहिए करने के लिए, क्योंकि बॉडी इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिवाइस ऑन प्लैनेट अर्थ इज़ द हुँ, बॉडी। हुँ, 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 इट एग्ज़ैक्टली नोज़, और बाहर से कुछ भी चीज़ इंटरफेरेंस है, हुँ, हुँ, बॉडी में इंटरफेरेंस है। कई हुँ, बार वो इंटरफेरेंस ज़रूरी होता है, हुँ, हुँ, लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं भी होता है। बिल्कुल। तो ये एक वो बनाना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं है। हुँ, 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 तो कमिंग बैक टू, हाँ, हाँ, हमारी बातों के लिए, हाँ, तो जो तो हेड
हेड डाउन टिल्ट किया आपने, हम्म, तो बैरो रिसेप्टर जो वेसल में था उसने हार्ट को इंडिकेशन दिया कि बहुत प्रेशर से ब्लड आ रहा है, थोड़ा कार्डियक आउटपुट कम करो, तो हम्म, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सिस्टोलिक। और हम्म, चूंकि बाहर से सब जगह से ब्लड इकट्ठा हो रहा है हम्म, एक जगह, तो इन पेरिफेरल वेसल्स का भी रेजिस्टेंस कम हुआ, तो डायस्टोलिक भी कम हो गया, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और मेंटेन हो जाता है। लेकिन पल्स प्रेशर बढ़ जाता है जिससे किडनी में फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। इसी को नेचुरल डायलिसिस कहते हैं। नाउ दूसरा मेथड हम्म, दूसरा मेथड है हॉट हॉट वाटर इमर्शन। हम्म, जैसे ही आपने देखा होगा, आप अगर पानी में आते हैं, आप अगर देखेंगे, पहले हमारी जिंदगी में नदियां हुआ करती थी, नदियों के ये किनारे ही सिविलाइजेशंस बसते थे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और नदियों में हम खड़े होते थे, नदियों में सूरज को प्रणाम करते थे, नदियों में खड़े होके। हम्म, तो नेचुरल डायलिसिस वहीं पे हो जाता था। अगर कोई बीमारी है तो वो लाइफस्टाइल था, हम्म, आज वो लाइफस्टाइल नहीं है। हम्म, आप देखें, आप हम्म, सोचें, ये हम्म, कितनी बड़ी बात है कि हमने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया। हमें नेचुरल चीजों से डर लगने लगा। नदी ठीक नहीं है, गंदी है, पानी गंदा है। आप देखिए हम कहाँ आ गए, सफाई करते करते हम कहाँ आ गए, खुद को ही साफ कर रहे हैं। ह्यूमन काइंड साफ होता जा रहा है, और हमें इस बात का इल्म नहीं है कि हम इतनी सफाई से कर क्या रहे हैं। ये यस आप अगर आएंगे हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेराबस्सी में हॉस्पिटल है, ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर, बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट, और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं
तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो ये एक प्रश्न है जो सबको सोचना भी चाहिए। एनीवे, तो हॉट वाटर इमर्शन में हम क्या करते हैं? हॉट वाटर में जैसे ही आपने डाला, आपको मालूम है कि वो जैसे ही आप बाथ टब में जाते हैं या पानी के अंदर नदी में आप नहाने जाएं तो सबसे पहले प्रेशर हार्ट पे पड़ता है। बिल्कुल ये पड़ता सबने देखा भी होगा और वो भी किया होगा। तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आया तो कार्डियक आउटपुट इमीडिएटली बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए और हार्ट को बोला कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम करो। हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हुआ, राइट? उसके बाद चूंकि हीट है पानी में, पानी गर्म है, तो गर्म चीज क्या करती है? कोई भी चीज को चौड़ा कर देती है, खोल देती है। फैला देती है। तो पेरिफेरल वैस्कुलेचर फैल गया जो क्योंकि अंतड़ियाँ, हाथ और जो नाड़ियां हैं वो फैल गई। खुल गई। तो आपको फिर से याद दिलाऊं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे था, कितना रेजिस्ट कर रही हो, अब तो वो खुल गई तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया। सिस्टोलिक थोड़ा कम हुआ, डायस्टोलिक ज्यादा कम हो गया, तो पल्स प्रेशर बढ़ गया, वही 110/60 आ गया, तो 50 हो गया पल्स प्रेशर जो पहले 40 था। तो ये पल्स प्रेशर किडनी में से टॉक्सिन्स को निकालने में ये कामयाब होती है। इसी को नेचुरल डायलिसिस कहते हैं। और इसी डायलिसिस से चीजें पेशेंट की ठीक होने लगती हैं, जिसमें साइंस ने बहुत अच्छा काम किया है डायलिसिस मशीन ये लेके कि पूरा ब्लड को फिल्टर करके जो भी हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए वो करें। लेकिन इससे अच्छी क्या बात होगी कि नेचुरल वे में डायलिसिस अगर हो रहा है, क्योंकि अगर बॉडी खुद कर रही है तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो ये तरीके से ये साइंस है उसके पीछे, जिसके पीछे नेचुरल डायलिसिस है और पेशेंट के पैसे बच रहे हैं। आप देखिए, ये सिर्फ पेशेंट के पैसे बचने की बात नहीं है, उसका शरीर बच रहा है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, और वो अकेले तो ड्राइव करके हॉस्पिटल जा नहीं सकता, ही इज वेरी सिक। तो एक घर का जवान लड़का या छोटा भाई अपना जॉब छोड़ के उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, वापस आते हैं, तो जिस आदमी का डायलिसिस हो रहा है फैमिली के लिए, वो प्रोडक्टिव नहीं है। एक जो लड़का था जो कुछ काम करके फैमिली के लिए प्रोडक्टिव था, वो भी प्रोडक्टिव नहीं है अब। तो जो इस फैमिली में पैसे जमा थे अब वो खर्च हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी उसमें बढ़ नहीं रहे, इजाफा करने वाला कोई है ही नहीं। तो मैक्सिमम फैमिलीज की यही स्टोरी है और बहुत दयनीय स्टोरी है। आप कभी इनके घर जाएं और इनसे पूछें कि कैसे चल रहा है, इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे चल रहा है। हम आपको कैसे बताएं, हम जानते हैं इनका कैसे चल रहा है। तो अगर ये नेचुरल वे में, मान लीजिए कोई डायलिसिस का पेशेंट खुद अपने आप ये घर में ठीक हो रहा है, तो कम से कम बच्चा तो उसका फ्री हो गया, वो नौकरी कर सकता है और वो अपने घर को संभाल सकता है। अगर डायलिसिस के लिए जा रहे हैं तब तो दोनों जा रहे हैं। तो हफ्ते में अगर 3 बार जाना है या 2 बार जाना है तो इतनी छुट्टियां कहाँ मिलती हैं? नहीं मिलती, नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी चली जाएगी। और यही होता है, ये हो रहा है। मान लीजिए मोदी साहब ने फ्री भी कर दिया, 5 लाख के लिए फ्री कर दिया, लेकिन घर में कोई इनकम ही नहीं है, क्योंकि फादर को लेके कौन जाएगा? बेटा लेके जाएगा, उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। या अगर कुछ बिजनेस करना है तो उसमें बहुत इंटरप्शंस आएंगे, वो नहीं कर पाएगा। ये स्थिति है। अच्छा, और ये नेचुरल डायलिसिस। डॉक्टर पांडे, एक बात हमने पहले भी बोली थी कि ब्लड वेसल्स में अंदर कुछ रुकावट आ गई, उसमें वो जो उसका रास्ता जो है वो तंग हो गया, उसकी वजह से जो है वो ब्लड अंदर से जा नहीं रहा सही ढंग से, इसलिए जो
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या उसको बोलते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो इसकी साथ-साथ अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन आ गई, सोज आ गई, उसकी वजह से भी ये जो होता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर जो है, हमने कई बार इस पर बात भी की है कि ब्लड प्रेशर रूट कॉज़ है कई बीमारियों की। कई बीमारियों की रूट कॉज़ होती है। तो जब हम 40 डिग्री पानी में एक मरीज़ को बिठाते हैं, उसको लिटाते हैं या अ, उसको उसका इलाज करते हैं उसमें बिठाकर, तो क्या जब उसको बिठाते हैं, आपने बोला कि वो वेसल्स हैं वो खुल जाती हैं। तो वेसल्स खुलती हैं, तो वेसल्स खुलने की वजह से जो है वो जब जब अंदर जो सोज आई हुई है, क्योंकि सोज का एक फंडा है कि अगर उसको आप सेक देते हैं किसी चीज़ से, तो वो सोज उतर जाती है। तो पानी में अगर हम लोग किसी को बिठाते हैं गर्म पानी में, तो उसकी वेसल्स की जो सोज है वो उतर गई अंदर से और वो भी ब्लड प्रेशर जो है उसका नॉर्मल आना शुरू हो गया, ब्लड उसका सही ढंग से चलना शुरू हो गया। क्या ये भी साइंस काम करती है? यस, इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। आप जो सोच बोल रहे हैं वो मतलब इन्फ्लेमेशन है। जी, 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 कोई चो इन्फ्लेमेशन कोई चोट लगती है तो वहां पर जो लाल हो जाता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो पैथोजेनिक इन्फ्लेमेशन होता है, एक नॉन पैथोजेनिक इन्फ्लेमेशन होता है। जी, जी, जी। क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही बेसिस है दुनिया में सभी डिजीजेस का। हुँ, हुँ, आप दुनिया में जितनी डिजीजेस जानते हैं हुँ, हुँ, हुँ। उसका बेसिस क्या है? इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल। और इन्फ्लेमेशन कैसे आया, कोई पूछ सकता है कि इन्फ्लेमेशन मैं तो ऐसा कुछ करूं कि इन्फ्लेमेशन हो ही ना, हुँ, 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 हुँ। तो फिर बीमारियां नहीं होंगी। हुँ, 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 तो ये बात समझने वाली है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। हुँ, हुँ। इनफ्लेम्स, इन्फ्लेम अंदर इनफ्लेम्स। हुँ, तो अग्नि। फ्लेम कहां से आ रहा है? हुँ, हुँ, कुक्ड फूड से आ रहा है। जिस खाने में आप आग लगा रहे हैं, हुँ, इन्फ्लेमेशन वहीं से आ रहा है। हुँ, 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 इसीलिए रॉ डाइट पे आप अगर आ जाएंगे तो हुँ, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, बिकॉज इनफ्लेम्स कुछ भी नहीं है। हुँ, 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 हुँ। आप आप समझे? आई जस्ट ट्राई टू पुट टू एंड टू टुगेदर। बिल्कुल, बिल्कुल, दो मुझे और दो चार बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। होंगे? मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ये जो रूट कॉज़ मैंने आपको फिर वहीं आता हूँ कि रूट कॉज़ है शुगर और ब्लड प्रेशर ये रूट कॉज़ है क्योंकि पिछले पिछले दिन जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पटियाला में, तो उस दिन भी जो है वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और आप सभी ने एक ही बात पे ज़ोर दिया था कि सबसे पहले एक शुगर की गोली अगर किसी को लगा दी जाए, तो उसके बाद वो ब्लड कुछ दिन बाद वो ब्लड प्रेशर की गोली खाने लगेगा, कुछ दिन बाद वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएँगे, उसके बाद बीपी हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, उसके बाद जो है आगे, 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 आगे बीमारियाँ बढ़ती चली जाएँगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, रूट कॉज़ है। तो ब्लड जो है पैरों से ऊपर नहीं जा रहा, 2 हार्ट है एक किस्म से, एक जो काफ मसल्स है और एक जो है हार्ट है। ये जो पंप करते हैं क्योंकि काफ मसल भी सेकेंड नीचे हार्ट। हाँ, सेकंड हार्ट नीचे से पंप करके ऊपर भेज रहे हैं ब्लड और हार्ट जो है वो भी इसको पंप करके जो है पूरे सर्कुलेट कर रहा है। तो शुगर में भी ऐसा ही होता है, शुगर में जो है वो नाड़ियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसके अंदर जो है वो सही ढंग से काम नहीं करती क्योंकि उसमें ब्लड सही ढंग से नहीं जा रहा। तो ये जो आपने 40 डिग्री पानी वाला जो एक तरीका जो है वो आपने इजाद किया है, तो क्या 40 डिग्री पानी वाले सिस्टम से शुगर और दूसरी बीमारियाँ भी वो ठीक होने लगती हैं अपने आप? क्योंकि नाड़ियाँ जो है वो सिकुड़ी हुई नाड़ियाँ जो वो खुल जाएँगी जब हम 40 डिग्री पानी में बिठाएँगे तो। तो सिकुड़ी हुई नाड़ियाँ चाहे वो शुगर वाले की होंगी, उसमें अगर ब्लड जाना शुरू होएगा, तो वो भी जो अपने आप में उसमें हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या ये ठीक कह रहा हूँ मैं? यस, एब्सोल्युटली। आप एक काम करिए, हुँ, हुँ। आपका इस प्रश्न का बहुत सरल उत्तर देने के लिए हुँ, हुँ। कभी आप वार्म वाटर के बाथ टब में 5 मिनट बैठ जाइए। 5 मिनट पहले एक सेल्फी ले लीजिए, 5 मिनट के बाद एक सेल्फी ले लीजिए। आप देखेंगे आपकी शक्ल रेड दिखने लगेगी 5 मिनट के बाद। हुँ, बिल्कुल, 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 तो वो होता है। कैसे है? क्योंकि ब्लड शुगर ब्लड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगता है चारों तरफ, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हुँ, 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 हुँ। तो ये सबके लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। तो इसीलिए पहले क्या होता था कि अमीरों के घर में हुँ, हुँ। बाथ टब हुँ, ज़्यादातर होता ही था। हुँ, 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 और वो एक एज़ अ रूल वो हुँ, बाथ टब में ही नहाते थे, हुँ, 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 क्योंकि वो एक और वो बहुत अच्छा तरीका है। हुँ, 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 आज पॉसिटी ऑफ टाइम है, हुँ, किसी के पास टाइम की कमी है, ज़्यादातर लोगों के पास है,
तो वो बाथटब में टाइम वेस्ट समझते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ बॉडी है। अगर बॉडी कंजर्व किया तो वो टाइम बढ़ जाएगा, मतलब टाइम बढ़ जाएगा मतलब आप ज्यादा दिन तक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए जो नियम बनाए गए हैं जिंदगी जीने के, जो योग में भी है, योग में जो योग का अष्टांग योग कहते हैं, उसमें भी जो 8 अंग हैं योग के, अष्टांग मतलब 8 अंग, 8 अंक। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 जो है, ये सभी चीजें आपको डिसिप्लिन में लाते हैं। और जब भी आप बॉडी के साथ डिसिप्लिन में आ जाएंगे, 120 साल जीना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बात बताइए कि जो अभी 40 डिग्री मैं मेरी सुई अभी भी वहीं अड़ी हुई है, क्योंकि 40 डिग्री पानी वाला मेथड जो है मैं जनता तक इसलिए ज्यादा पहुंचाना चाहता हूं कि इससे जो है वो सिर्फ किडनी और ब्लड से संबंधित, जो ब्लड वेसल्स के संबंधित जो है वो बीमारियां ही नहीं ठीक होंगी, इससे और भी बहुत सारी बीमारियां जो बॉडी के अंदर हैं वो यस, भी ठीक होंगी। तो वो बीमारियां बताइए कि ये तो है ही है, क्योंकि ये तो है ही है, किडनी ठीक हो रही है, ये तो है ही है। क्या लीवर, शुगर और अपना जो ऊपर दिमाग के ऊपर वाली जो बीमारियां, डिप्रेशन, माइग्रेन, आंखों की बीमारियां, क्या ये भी सभी जो है उसके बाद उसमें ठीक होने लगती है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से समझिए, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्रीज। 37 डिग्री, बिल्कुल। आप 42 डिग्रीज जब बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं, दैट मीन्स आप बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बाहर से दे रहे हैं। हुँ, हुँ, तो बॉडी को आप सेक दे रहे हैं। हुँ, ये जो है इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, टॉक्सिन्स, चूंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो हुँ, टॉक्सिन्स ज्यादा ये पसीने से निकल जाएंगे। हुँ, तो जैसे ही पसीने से टॉक्सिन्स निकलने लगेंगे, हुँ, बीमारियां कम होने लगेंगी, हुँ, सभी बीमारियों पे फर्क पड़ेगा। हुँ, हमने तो यहां तक भी देखा है कि जो स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स हैं, हुँ, उनको भी धीरे धीरे जो फील गुड फैक्टर है वो 2 ही 3 दिन में आने लगता है। अच्छा। ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। हुँ, 2-3 दिन में उनको फील गुड फैक्टर, उनको लगता है कि मेरी बीमारी या तो नहीं है हुँ, या हुँ, कम हो रही है, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हुँ, तो ये तो मेरा मशवरा है कि अगर सभी लोग करना शुरू कर दें हुँ, तो सब अपने आप ठीक होने लगेंगे और डॉक्टरों की जरूरत ना पड़े। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सबके तो अपने अपने काम है, सबका अपना अपना ये है, अपनी अपनी फैमिली में रहना है। तो ये तो ये जकूज़ी जो है एक सिस्टम होता है कि जिसमें पानी के से उसमें मसाज भी होती है, मशीन होती है, उसमें टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो ऐसा कोई सिस्टम बताएँ जिसमें पब्लिक को सस्ते में वो चीज़ जो है बन के उसमें वो कर लें? क्योंकि बाथ टब और ये वो मतलब इसमें जो बाथ टब मैंने आपका देखा है वहाँ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने दिखाया था, वो थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लगा, वो बनाना बड़ा मुश्किल में लग रहा है मुझे। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, वो तो अब वैसे प्लास्टिक का बहुत महंगा भी नहीं है। और जकूज़ी जो आपने बताया वो एक्चुअली प्रेशर से पानी को हुँ, हुँ, डालना हुँ, प्रेशर पॉइंट्स पे, हुँ, वो भी एक अच्छा सिस्टम है। फाइब्रोमाइल्जिया, कभी हम बात करेंगे उस पे। हुँ, हुँ, फाइब्रोमाइल्जिया जैसे लोग उठ के बोलते हैं मेरे को ना पूरे शरीर में दर्द है, पूरा शरीर टूट रहा है, हुँ, कभी हुँ, यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, कभी हुँ, इसको हुँ, इसको हुँ, फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। और ये बिगिनिंग है हुँ, ऑटो इम्यून प्रोसेस का। हुँ, 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 अगर इसको ऑटो इम्यून के ढर्रे पे हम लोग ऑटो इम्यून के ढर्रे पे ट्रीट करते हैं और बिल्कुल ठीक 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी कोई दर्द ही नहीं था, हुँ, ऐसा लगने लगता है। बिकॉज ऑटो इम्यून प्रोसेस, लीकी गट का ये बिगिनिंग है। हुँ, 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 फाइब्रोमाइल्जिया जो होता है चारों तरफ, आप हुँ, अगर गूगल में सर्च करेंगे, मेडिकल लिटरेचर में सर्च करेंगे, तो फाइब्रोमाइल्जिया कॉज अननोन, हुँ, ज्यादातर जो क्रोनिक बीमारियां हैं उसका कॉज अननोन है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सब में भी हॉट वाटर इमर्शन काम करेगा।
तो मुझे लगता है कि जो ये बात आपने क्लियर की है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है और जो जिन लोगों ने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के ऊपर जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज करवाई है, उनको एक बड़ा जवाब मिलने वाला है साइंटिफिक वे से और वैज्ञानिक ढंग से उनको ये जवाब मिलने वाला है। और जो लोग ठीक हुए हैं, टेस्टिमोनियल भी उनके सामने होगा, साइंटिफिक वैज्ञानिक जो विज्ञान भी उनके सामने होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उनके पास कोई जवाब बचेगा। सिर्फ़ जवाब होगा तो ये कि 1 लाख करोड़ का बिज़नेस जो है वो कैसे बचाया जाए? बात वो नहीं है। अगेन मैं लास्ट में आपको एक ही बात ये बोलूंगा जाते जाते, कंपटीशन इज ह्यूमन। हुँ, हम हुँ। आपस में कंपटीशन करते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन अगर कोऑपरेट करने लगे हुँ, हुँ, तो भगवान की श्रेणी में हम पहुंचने लगते हैं। इसीलिए वो सेइंग है, कंपटीशन इज ह्यूमन, हुँ, कोऑपरेशन इज डिवाइन। हुँ, 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 हुँ। तो बिल्कुल, अगर कोई अगर देखना भी चाहे, सोचना भी चाहे, साइंस में खोज भी करना चाहे, ये सभी कुछ साइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक नहीं है। हुँ। तो जाते-जाते मैं एक तो चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के ऊपर एफआईआर हुई है। उसके ऊपर पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई है। मेरी बात हुई उनसे मैंने वीडियो में भी पूछा था उनको बोल तो वो बोलते हैं भी मेरे पास हर 2 महीने बाद एक कंप्लेंट कोई ना कोई दर्ज करवा जाता है। तो डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद के ऊपर भी मीज़ल और रूबेला का जो इंजेक्शन के ऊपर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे। तो उस सवाल के बाद ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की कर दी गई और उनका जो मैटर है वो कोर्ट में अभी चला गया है। तो इस एक-एक करके उलझाया जा रहा है, कहीं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से। तो क्या डॉक्टर विशु राय चौधरी और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद इनके मामले में आप सभी एकजुट हैं? क्या उनके जो प्रॉब्लम आएगी आप एक एक साथ मिलकर इसको टैकल करेंगे? जी, एब्सोल्युटली। आप देखें, अगेन बात ये है कि हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम, अगर कोई अनसाइंटिफिक बोल रहा है, उसमें क्या साइंस है, वो बताना। हुँ, हुँ। तो ये तो फेयर प्ले है। अगर मान लीजिए ये प्रूव हो गया, आपने मुझ पे एफआईआर ये कर दिया कि आप अनसाइंटिफिक बात बोल रहे हैं। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि वो साइंस है, तो हुँ। आपका जो कंप्लेंट था उसका आधार ही गलत हो गया। तो अंडर सेक्शन 182 182 आईपीसी के तहत जो है वो ये फ़ॉल्स कंप्लेंट मानी जाएगी और जिन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाया उनके ऊपर भी एक्शन होता है। ये देखिए, मैं वही 100 बात का एक ही जवाब है, हुँ, हुँ। दैट कंपटीशन इज ह्यूमन, हुँ, हुँ। कोऑपरेशन इज डिवाइन। हुँ, 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 हुँ। हम आइए, हम साथ में मिलके पेशेंट का भला करें, सबका भला करें, सबका भला हो, सब लोग अपना ठीक, अपने आप ठीक होने लगे, तो ये दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। क्या बात है! नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ 10 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।